An illustration of suggestion which can be drawn from the subject specialist report, and especially in the science subject. Let's see what other functions it can perform. It can provide a satisfying picture of the world. When we say it is a satisfying picture of the world, it basically means that we can relate to this universe and the world around us in a better way. हम ये देख सकें कि हम इस यूनिवर्स में अगर हैं या इस कायनात में हैं और ज़मीन कहाँ पर स्टैंड करती है, तो हमारी ह्यूमन बींग्स के तौर पे यहाँ पर क्या पोजीशन है. हमें ये पता चलता है कि दुनिया को अगर आप साइंटिफिकली डिफाइन करना चाहते हैं और सिचुएट करना चाहते हैं, तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी साइंटिस्ट पूरी यूनिवर्स में ज़मीन को कहाँ पर प्लेस करते हैं. आपका एक अपना सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में आपकी क्या अहमियत है, आप किस किस्म के सैयारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके कितने चांद हैं और कितने सैयारे हैं. ये वो नॉलेज है जिससे हमें और बच्चों को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग का मौका मिलता है कि हम इस यूनिवर्स में एज ह्यूमन बीइंग कहाँ पर पोजीशन होल्ड करते हैं. What is our relationship to this world and how we are contributing to this world positively or negatively? ये इस किस्म का तमाम साइंटिफिक नॉलेज उस वक्त तक मुमकिन है जब तक कि हम इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर पढ़ के और फिर देखते हैं कि हम किस किस्म का ऑब्जेक्टिव प्रपोज कर सकते हैं जिसे हम अपने करिकुलम में शामिल कर लें. बिल्कुल इसी तरह से जब हम यूनिवर्स में दुनिया की बात करते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के मौसम किस तरह से तब्दील होते हैं, हम किस किस किस्म की एनर्जी को फेस करते हैं, सन की एनर्जी हमारे तक कितनी टाइम में पहुंचती है और चांद कहाँ पर एग्जिस्ट करता है. इफ़ वी अंडरस्टैंड अर्थ in the universe in a better way, then we can realize our importance as human beings in a better way. This is one of the functions which can be served by teaching of science as it is being described in the subject specialist report. Now we have discussed three ways how and what kind of functions science can perform. One is the development and understanding of health and hygiene at the community level and at the individual level, where we can develop good health habits, we can develop good health practices, and then we can learn ways to understand how different diseases they spread and what kind of precautionary measures we can take to get rid of all these diseases and to be safe. Then how we can conserve natural resources and we can use them judiciously so that they are not depleted. Third is to develop an understanding of the world scientifically, where do we stand. If we want to draw objectives after reading the reports, what we have to do is that certain suggestions would be that we can teach scientific knowledge. जब हम साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं तो ये तमाम किस्म का कंटेंट मैटर है, जहाँ पर आप मैटर्स और मटेरियल्स, आप डिफरेंट किस्म की साउंड्स की बात करते हैं, आप एनिमल्स और प्लांट्स की बात करते हैं, वेरिएशन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप कंटेंट के तौर पर अपनी किताबों में पढ़ भी चुके हैं जब आप स्कूल में थे, और आप अब भी देख सकते हैं कि तमाम उसी किस्म का कंटेंट कुतुब में शामिल होता है जिसको आप पढ़ा सकते हैं. At the same time, we can teach scientific skills or basic science processes, where we say how to make observations, how to draw conclusions, how to gather data, how to infer certain results, how to analyze all the results which we have taken from different kinds of resources and sources, and then how we can describe them. So ability to observe, to describe, to define, to explain, and to draw any kind of conclusion, to classify things, to group things, all these things, they are included in certain skills which are called as science process skills. While we are doing all the science, we also enable students that they can develop certain positive skills towards science, and this positive skill and positive attitude develops only when you start understanding something. Unless and until you understand something, you won't like any subject, and same is the case with the science. आप साइंस को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आपका लर्निंग की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है. बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको ये तमाम बातें समझ में आती हैं कि हम करिकुलम के लिए ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं, तो आपका अपना एटीट्यूड भी करिकुलम डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव होता चला जाएगा और ये काम आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा.
Similarly, teaching of science enable us to solve problems. प्रॉब्लम्स आपकी क्लास में भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आपकी कम्युनिटी में भी हो सकते हैं और घर पर भी हो सकते हैं. सो हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी कैन क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हाउ वी कैन फेयरली टेस्ट एनी काइंड ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच वी आर मेकिंग, how we can differentiate between hypothesis and assumptions. और जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को पॉजिटिवली सॉल्व करेंगे, and it will be a win-win situation for everyone if it is a conflict between the individuals. So problem solving सब्जेक्ट लेवल पर भी हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकती है और कम्युनिटी लेवल पर भी हो सकती है. इसके साथ साथ जब हम तमाम ये चीज़ें सीखते हैं तो हमारा एक पॉजिटिव इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट एरिया में. सो सब्जेक्ट साइंस स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम साइंस को पढ़ाना चाहते हैं तो हम जो फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं वो परफॉर्म करने के साथ साथ साइंस हम एज करिकुलम ऑब्जेक्टिव के तौर पर एज कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर के तौर पे पढ़ा सकते हैं. हम मुख्तलिफ स्किल्स की तालीम दे सकते हैं और हम पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बिहेवियर इनकलकेट कर सकते हैं. एंड ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग वी कैन डेवलप एन इंटरेस्ट एंड पॉजिटिव इंटरेस्ट towards learning among the students, and this is only possible when a curriculum developer is keen enough to look into the reports, to understand the reports and then draw certain conclusions about what kind of objectives can be drawn from this report, and it can be also included in the curriculum at elementary level.